नमस्ते एवरीवन। आज मैं काइडली का है और ये सेक्शनल करूँगी। इसमें ये 2024 के ओपन हो गए हैं। फर्स्ट वाला ओपन हो चुका है सबका। मैं इंग्लिश का कर रही हूँ इसका। स्टार्ट करते हैं। कहाँ इंग्लिश का? ये वाला SBI क्लर्क का है। ये स्टार्ट करते हैं। आई एम गिविंग फ्रॉम गाइडली। एरर वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे। इसमें पैराजम्बल भी है, बाद में करते हैं। इसको अलग करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। केरला वंस अगेन स्टेयर्स एट अ फ्लड लाइक सिचुएशन with high intensity rain triggered by strong monsoon winds lashing central Kerala. In addition, a low pressure system is expected to form over the Bay of Bengal by Sunday, which is likely to dash. क्या कर देगा? तो नेगेटिव बात हो रही तो एग्रावेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, रेंस को और बढ़ा देगा. And this situation is precarious, अनिश्चित, uncertain in the state, especially in central Kerala, where dash rivers have already started. जहाँ पर कौन सी रिवर्स होंगी? The situation is precarious in the state, especially in central Kerala, where dash rivers. So कैसे रिवर्स होंगी? वहाँ लार्जर रिवर्स हो सकती है, मैसिव रिवर्स नहीं, बिगर रिवर्स नहीं, लार्जर बड़ी, लार्जर मतलब लंबी और बिगर मतलब बड़ी रिवर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इनंडेटिंग सेवरल लो लाइंग एरियाज. सो वेयर लार्जर रिवर्स, मुझे सही लग रहा है वैसे तो, वेयर लार्जर रिवर्स, ये हो गया, ठीक है. एंड देन स्टेट, यहाँ से लिखेंगे हॉन्टेड बाय द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ 2018 फ्लड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल केरला डिस्ट्रिक्ट गोइंग इनटू एक्शन ऑन थर्सडे आफ्टरनून स्टार्टिंग द डैश. सो इवैक्यूएशन होगा लोगों का, evacuation of people from flood prone, ये हो गया. As many as 3 persons were killed, taking the total deaths to 22 in 5 days. A total of इतने लोग was shifted to 21 relief camps after a what? After a dash of intense rainfall coupled with full, after a execution नहीं, repulsion नहीं, proportion of intense rainfall coupled with full reservoir levels. After a proportion of intense rainfall coupled with full reservoir levels and overflowing rivers created a worrying scenario. Combination आएगा. And this one is the release of water from this and ये dams to in this dam has resulted in the Chalakudi river breaching the banks in many places. ब्रीचिंग माने होता है ब्रीच करना, बैंक्स को ब्रीच करना. यहाँ पर मुझे थोड़ी सी वोकैब में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं इसे क्लियर कर लूँ और आगे बढ़ते हैं. देन दिस इज पैसेज जो अब अभी नहीं करेंगे हम, ये वाला करते हैं. द वॉर हैज़ डैश, सो द वॉर हैज़ अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ, तो ए और सी का पेयर बनना है. एक बार बी डी भी चेक कर लेते हैं. ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप लार्जली बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इम्पोज. यस, बी और डी भी होगा. Efforts are being made to plug what? Plug the loopholes in the regulatory system so that low quality drugs do not enter the global. So B और C का पेयर है केवल. The attempts of G20 meeting shows that duplicitous China can stoop to desperate levels. नहीं. On several occasions in the past, China had blocked the attempts at the United Nations to list the terrorists, to boycott. So नहीं can to boycott, to list level नहीं, to buy नहीं, तो B तो सही है. the boycott of soldier नहीं ANC नहीं, AND to list the terrorist, list सही है. D भी सही है and then B भी सही है. China had blocked the China had blocked the attempts. So A और C boycott. हाँ ये होगा. When the pillars of state under attack by political leader, then whatever the aim, the consequence is to bring their credibility into question. The economy cannot be effectively managed in an environment where there is erosion of institutional authority and non-stop political turmoil. Political clash भी आ सकता है.
ये तो नो स्वैपिंग लग रही है. When read with continuing uncertainty about the conduct of 2021 census, the government's latest comments about making the next census exercise suggest a truncated understanding of the importance of the sanction. सही है. Much more smarter. सही है. The information while the census is primarily a geographically tied head count of the people, the information in India has offered much more smarter than just a summary head count. Yes, A और C का पेयर. Estimates सिनोनिम बताने. Estimate करना, गॉज करना. गॉज, कैलकुलेट, गेस. B और C. नियरली सिनोनिम बोला है. अपॉर्शन माना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. डिस्पेंस, A and C. हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, ऑल आएगा इसमें. तो क्या कर लेते हैं. द प्लान्स बाय द गवर्नमेंट, प्लान्स के लिए हैव आएगा. टुडे इफ द सेम स्कूल्स आर अ रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट, दैट वॉज नीडेड टू बी चेंज्ड. सेम स्कूल्स आर a reason for identification and isolation of students based on their caste that was needed to be changed. इसमें मुझे कोई एरर तो लग नहीं रही वैसे तो. सेम स्कूल्स के लिए आर लगाया. रीज़न फॉर, इट इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज that are looking to scale up. Yes, the industry has mixed views on the immediate impact of the huge investments that are expected to come into. Yes, C में error है. In the first 2 years of the pandemic, there were reports that TB treatment was hit की थर्ड फॉर्म नहीं होती. hit by disrupted supply chains, availability of healthcare workers for non-pandemic work and access to drug. हाँ ये सही. अब हम अगर हमारे पास कोई पैसेज, फैसिनेटिंग का एंटोनिम. फैसिनेटिंग मतलब जो कैप्टिवेटिंग हो, तो रिपल्स होगा जो दूर कर रहा हो. डिटरमाइनिंग का करेक्ट सिनोनिम, डिटरमाइनिंग. यहाँ पर किस तरीके से यूज़ है डिटरमाइनिंग, कहाँ है. Chain reactions and interactions between the four mentioned processes play a crucial role in determining the magnitude. Determine वाले यहाँ पर जो यूज़ हुआ है उसका मतलब है पता लगाना, फाइंड करना. सो इसका सिनोनिम ट्रेवेल, लीनियल, रेगुलेट. तो कोई नहीं लग रहे हैं. नाउ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉज फॉर ओवरफ्लो ऑफ डेब्रिस. सो ओवरफ्लो ऑफ डेब्रिस किस वजह से हुआ. कहीं तो लिखा होगा. यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलरली सीवियर डिजास्टर्स हैव रिजल्टेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट. दिस वन टर्म्स ऑफ हजार्ड में भी रफली स्मॉल्स. डेब्रिस फ्लोज फ्रॉम पर ग्लेशियल एरियाज आर फ्रिक्वेंटली कॉज डैमेज. तो फर्स्ट वाला तो है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की वजह से. यस इसकी वजह से भी है. और सो फर्स्ट एंड सेकेंड भी है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड है और कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो यही होगा आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉजेस इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन इन ग्लेशियर माउंटेन रीजन. सो ग्लेशियर माउंटेन रीजन में क्या चीज़ें हो रही हैं. ग्लेशियर्स to the air, so changes in glaciers may well lead to hazardous conditions, particularly in the form of avalanches. Which of the following option causes impact जो कर सकती है on human population पे in glacier mountain region में. so देखो यहाँ पर है avalanches आ सकते हैं, floods, air passage that converts into ice.
सो एवलांचेस हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव ग्लेशियल हैजार्ड। डेब्रिस फ्लोज भी आ सकता है फ्रॉम पर ग्लेशियल एरिया से हैव फ्रिक्वेंटली कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन ह्यूमन माउंटेन एरियाज। बट ये माउंटेन एरियाज में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिया था ह्यूमन पॉपुलेशन पे, तो यहीं पर दे रखा है एवलांचेस दे रखा, तो मैं यही लगा रही हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन का एवलांचे। बट वाई द ग्लेशियर्स आर कंसिडर एज द ग्लोबल थ्रेट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। ग्लोबल थ्रेट क्यों है ग्लेशियर्स? सो ग्लेशियर लेक्स के बारे में कहीं ना कहीं दिया होगा। लेट मी फाइंड। Chain reactions and interaction between the forementioned processes play a crucial role in determining the magnitude and frequency of glacial related hazards. As one example, outbursts of naturally or artificially dammed mountain lakes were caused by impact waves from rock and ice avalanches, and this led to failure of the dams. कहाँ है? If the glaciers are becoming harder, it will be tougher for people. Harder की तो कोई बात नहीं होगी. If the glaciers do not form during the warmer times, the people in mountain region will be engulfed. Maybe ये हो सकता है. If they get close to melting point, it will strongly react to climate change. यहाँ दिया तो है फर्स्ट लाइन में बिकॉज दे आर क्लोज टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड रिएक्ट स्ट्रांगली टू क्लाइमेट चेंज। सो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया, मैं नीचे देख रही हूँ। फॉल्स है एवलांचेस विद वॉल्यूम्स लार्जर देन 1 मिलियन। एवलांचेस की बात यहाँ हुई थी। Avalanches with volumes smaller than are most of concern. So false, first वाला false है। फर्स्ट के साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ ग्लेशियर हजार्ड्स अफेक्ट अ हाईली डेंस एरिया। हाईली डेंस एरिया, मेजॉरिटी ऑफ ग्लेशियर हजार्ड्स। हाईली डेंस एरिया ऐसा दिया है क्या कहीं पर? एक पढ़ा तो था हमने, हाईली डेंस एरिया नहीं था। आई थिंक वो लो डेंस एरिया था, आई थिंक। यहाँ पर देखो, द मेजॉरिटी ऑफ ग्लेशियल हैजार्ड्स अफेक्ट ओनली अ लिमिटेड एरिया लिखा है, यहाँ अफेक्ट अ हाईली डेंस एरिया लिखा है। सो दिस इज रॉन्ग। सो फर्स्ट के साथ सेकंड भी है। ये वाला भी देख लेते हैं। दिस सीजनल स्नो ग्रेजुअली बिकम्स डेंसर एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू पेरिनियल फॉर्म।
दिस सीजनल स्नो, ये रहा, दिस सीजनल स्नो ग्रेजुअली बिकम्स डेंसर एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू पेरिनियल फॉर्म, तो ये तो सही है. सो ये तो सही है. एक बार अलग देखना पड़ेगा. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव ग्लेशियल हैजार्ड, बट दैट इज द हैजार्ड विद द लीस्ट पोटेंशियल फॉर डिजास्टर एंड डैमेज. सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करनी पड़ेगी. रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव ग्लेशियल हैजार्ड, दैट इज द हैजार्ड विद हाइस्ट पोटेंशियल, तो ये भी रॉन्ग है. सो ऑल आएगा फोर्थ वाले को छोड़ करके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ग्लेशियर फॉर्मेशन इज करेक्टली गिवन. ग्लेशियर फॉर्म कैसे होता है? वन द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर रिसोर्स बट ऑल्सो पोटेंशियल कॉज, ये है, यहाँ पर लिखा है फॉर्म्ड अराउंड द वर्ल्ड वेयर स्नो डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन डज नॉट entirely melt during warm. Snow deposited during the cold or humid season will melt, resulting in the formation of glacier. Does not melt entirely, हाँ ये वाला है. कौन सा बच गया? ये वाला मैंने नहीं करता. पैरा जंबल बच गया. Not only since sleep however through sleeping people can. स्लीप से, सो सी मुझे स्टार्टिंग सेंटेंस लग रहा है. फर्स्ट सेंटेंस तो मैं मार्क कर दूँ एक बार. स्लीप इज़ एन एसेंशियल एक्टिविटी नीडेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन अ डेली बेसिस पे. नॉट ओनली डज स्लीप रेजुविनेट द बॉडी, थ्रू स्लीपिंग पीपल कैन हैव बॉडीली रेस्ट and are able to recuperate body cells lost and damaged during the day. Not only does sleep rejuvenate the body, it has also been proposed to conserve energy, detoxify the brain, control thermoregulation within the brain. तो मुझे जो पेयर दिख रहा है ना, यहाँ से बी का पेयर दिख रहा है. सिंस स्लीप इज़ वाइटल टू ह्यूमन बॉडी, साइंटिस्ट रिकमेंड अप्रॉक्सीमेटली 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट. However, within this fast-paced society, only a few people can receive enough sleep that the body requires. So B और D का तो पेयर दिख रहा है, और ये मुझे लास्ट में आते हुए दिख रहा है. सो 5 जने का 1 2 3 4 5, बीच में 2 सेंटेंस और आएंगे. सो या ए या ई. नॉट ओनली डज स्लीप रेजुविनेट द बॉडी, यस, सो थ्रू स्लीपिंग पीपल कैन, और फिर ए, तो सी ई ए बी डी जो मेरा पेयर बनना है. सो थर्ड सेंटेंस ए, फिफ्थ है डी, सेकंड है ई, फोर्थ है बी, यस. 15th एक बार देखूँगी वाला चलाकुडी रिवर, हाँ इसमें मुझे नहीं आता. स्नैरिंग एक्सप्लोरिंग तो डेफिनेटली नहीं आएगा. ब्रीचिंग भी बैंक्स को ब्रीच कर रहा है. ब्रीच का सेंस आ सकता है जैसे कोई रूल्स तोड़ने में. बैंक्स को ऐसे जो रिवर के बैंक्स होते हैं उनको तोड़ने में भी आता है क्या? आई डोंट नो, इसका मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा, तो मैं सबमिट कर रही हूँ. मैंने बस एक छोड़ा है. सो लेट्स सी. ट्वेंटी 29 अटैम्प्ट करे हैं और 22.75. एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन पे भी आएंगे. अभी कम बच्चों ने ही दिया है, 860 बच्चों ने ही दिया है. सोल्यूशन देखते हैं कौन से गलत हुए हमारे. एक्यूरेसी बनानी है, 5 गलत हो गए हैं. स्टिल इट इज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. यहाँ नो एरर नहीं, डी में एरर थी. टुडे द सेम स्कूल्स आर अ रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट दैट वॉज नीडेड टू बी चेंज. सो क्या ज़रूरत, मतलब यहाँ पर डेट वॉज नीडेड टू बी चेंज, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है? इसमें क्या एरर थी? शुड बी चेंज टू नीड्स टू बी. ओके, अरे हाँ, वैसे यहाँ पर जो टेंस था ना, आर लिखा था, प्रेजेंट में लिखा था, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही आएगा. सो यहाँ पर जो मेरी मिस्टेक हुई वो टेंस की मिस्टेक हुई. जो हम ये देखेंगे एनालिसिस करते टाइम इंग्लिश में
कि हमारी गलती किस चीज़ में हो रही है, हम वोकेबलरी वाले पार्ट पे गलती कर रहे हैं या फिर टेंस वाले पार्ट पे या कोई रूल्स वाले पार्ट पे गलती कर रहे हैं। सो यहाँ पर टेंस लगता, टेंस वाले में सेम टेंस हम यूज़ करेंगे पूरे उसमें। दैट्स फाइन। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर लार्जर और बिगर में कन्फ्यूजन था, मैंने लार्जर लगाया था, बट यहाँ पर स्वॉलन रिवर्स, स्वॉलन मतलब पहले से भरी हुई, आई थिंक स्वॉलन सही है। ओके यहाँ पर वोकैब, बट वोकैब भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। यहाँ पर क्या था, सेकेंड और थर्ड, पर ग्लेशियल एरियाज, कॉज, सो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड लगाया, पर ग्लेशियल एरियाज भी तो कहीं दिया तो था। डेब्रिस फ्लोज फ्रॉम पर ग्लेशियल एरियाज हैव फ्रिक्वेंटली कॉज्ड डैमेज, पर ग्लेशियल एरिया से जो डेब्रिस फ्लोज आ रहा है, सो पर ग्लेशियल एरियाज उसके कॉज नहीं था। मैंने यहाँ पर ग्लेशियल एरियाज देखा और मैंने जस्ट टिक कर दिया, इसलिए बोलते पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा और आगे तक पढ़ना था। यहाँ पर क्या गलती हुई, डिटरमाइन का यहाँ पर जो सेंस लग रहा था वो लग रहा था फाइंड करने से, कि उसका मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी वो फाइंड करने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर आया इसका सिनोनिम रेगुलेट आया। हाँ मतलब एक तरीके से डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना या डिसाइड करना क्या चीज़ हुई है। सो यहाँ पर रेगुलेट माने कंट्रोल करना, उस सेंस में आया। और यहाँ पर को ए और डी में था, द नेक्स्ट सेंशियस स्मार्टर, मच मोर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट अ समरी, इन इंडिया हैज़ ऑफर्ड मच मोर स्मार्टर देन जस्ट, ये मैंने क्या लगा दिया, इंडिया हैज़ ऑफर्ड मच, द एक्सरसाइज इन इंडिया हैज़ ऑफर्ड मच मोर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट, वाह नाउन तो यहाँ आया ही नहीं, और मैंने यहाँ एडजेक्टिव मच मोर स्मार्टर तो बन ही नहीं रहा कुछ, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, रीडिंग से ही समझ में आ रहा है, ये भी गलत हो गया। एंड दिस इज़ ब्रीचिंग, लग रहा था ब्रीचिंग, बट मैंने सोचा रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जनरली ब्रीच आता है, बैंक्स को ब्रीच करना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं टिक किया, और इसका आंसर ब्रीच ही है। ब्रीच का मतलब होता है वैसे कोई लॉ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉमिस को ब्रीच करना, वायलेट करना। सो आई थॉट रिवर्स बैंक्स को ब्रीच करेंगी, थोड़ा समझ में नहीं आया उस कॉन्टेक्स्ट में। वेवर करना, वेवर कोई चीज़ वेवर कर रही है मतलब वो हिल रही है, मतलब वो वीक बनते जा रही है। स्नेयर माने होता है कोई चीज़ अचीव कर लेना जो बहुत डिफ़िकल्ट हो गेट करना। सो यही यहाँ पर हो सकता है। एक बात सही है कि मेरा पैराजंबल सही बना, सो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मेरा पैराजंबल सही बना है। सो अभी ज़्यादा बच्चों ने दिया भी नहीं है, क्योंकि अभी खुला, आई थिंक ये अभी तक नहीं था। सो अगर जिसने भी गाइडली का मॉक लिया हो, अगर आपने ये लिया है तो आप भी अपने स्कोर बताना। ये वाला फ्री नहीं है, ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है। सो जिसने लिया है वो अपने मार्क्स बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।